وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر سوئی گیس کے متبادل ایندھن کے لیے LPG کی سرکاری نرخ پر دستیابی یقینی بنانے اور نئی دکانیں قائم کرنے کے لیے SOPs پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالجبار گجر کی زیر صدارت DC آفس کے کمیٹی روم میں اجلاس کی منعقد ہوا، جس میں LPG ایسوسی ایشن کے عہدیداران، انتظامی آفیسرز، عزیز احمد سول ڈیفنس آفیسر، ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹری اور متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں لوگوں کو معاشی ریلیف دینے کے لیے LPG کے مقرر کردہ نرخ پر فروخت اور ناجائز منافع خوری کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں متعلقہ افسران سے کہا گیا کہ ضلع بھر میں عوام کو شدید سردیوں میں LPG کی بلیک مارکیٹنگ اور ناجائز منافع خوری پر سخت کارروائی کی جائے۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ 11.8 کلو گرام LPG کے بند سلنڈر کی قیمت 2321 روپے سرکاری قیمت مقرر کی گئی ہے، جس پر عمل درآمد کر لیے متعلقہ افسران اپنا کردار ادا کریں۔ علاوہ ازیں LPG کی نئی دکان کھولنے کے لیے ڈپٹی کمشنر متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر سے پیش کی تحریری اجازت لینا ضروری ہوگی۔ قواعد و ضوابط کے مطابق ہوٹل، اسکول، کالج، ویلڈنگ دکان کے ساتھ LPG دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فتح پور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا ڈاکٹر ندا عمر چٹھا کے ویژن کے مطابق عابد حسین SHO فتح پور کی سربراہی میں ایڈیشنل SHO سائمہ بطول فتح پور نے سیکورٹی برانچ کی نشاندہی پر مین بازار فتح پور اپنی ٹیم کے ہمراہ آتش بازی کا سامان رکھنے والے اظہر اقبال ڈھپ جٹ سکنا چک نمبر 104 ML کو پکڑ کر سامان آتش بازی برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا اور ملزم حوالات بند کر دیا۔ راؤ مزمل حسین، نمائندہ N نیوز فتح پور۔ ریاستی پاکستان کے زیر اہتمام چائلڈ لیبر کی اقسام کی نشاندہی اور بچوں سے رابطہ کاری کے حوالے سے فلاحی اداروں سے مشاورت کے سلسلے میں مظفر گڑھ میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ قصبہ گجرات تفصیل ریاستی پاکستان کی طرف سے مظفر گڑھ کے پروجیکٹ مینیجر شفیق الرحمان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اسکول میں داخل کریں، اور اس کے ساتھ مزید کہا کہ بچوں سے مزدوری نہ کرائیں، کیونکہ چائلڈ لیبر کا قانون بھی موجود ہے۔ ایک سروے کے مطابق لاکھوں بچوں سے مزدوری کرائی جاتی ہے۔ اس پر ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ نئی نسل کو اچھی تعلیم دے کر کامیاب افراد میں شامل کیا جا سکے۔ اس پروگرام میں ظہیر صاحب، مس مریم نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ مقامی NGOs، تحصیل کوٹ ادو سے ہیومن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے CO ہاشم خان گشکوری، تحصیل مظفر گڑھ سانجھ فاؤنڈیشن سے ناظم بلوچ صاحب، تحصیل علی پور سے میاں طارق صاحب، بھٹہ مزدور یونین کے صدر، رکشہ یونین کے صدر، بھٹہ مزدور، مزدور بچے اساتذہ، محکمہ تعلیم کے ڈپٹی DO شاہد سیال صاحب، سابق EDO کمیونٹی ڈیولپمنٹ ملک خیر محمد بدھ صاحب نے بھی شرکت کی۔ اس قسم کے پروگراموں کا انعقاد ہر سطح پر ہونا ضروری ہے۔ چودھری محمد جمشید، نمائندہ N نیوز HD قصبہ گجرات۔ مولانا اقتدار حسین نقوی، سیکریٹری جنرل وحدت المسلمین جنوبی پنجاب کی قصبہ گجرات پریس کلب آمد کے بعد پریس کانفرنس۔ یہودی طاقتیں امت مسلمہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یمن میں 100 سے زائد کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ملک پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے دہشت گردی کرائی جا رہی ہے، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کو یکجا ہونا وقت کی اشد ضرورت ہے۔ نئے پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری نے عوام کی کمر توڑ دی۔ سفید پوش طبقہ فاقہ کشی پر مجبور ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان ملک سے مہنگائی، بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے بہتر حکمت عملی اپنائیں۔ مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ نہ ہوا تو عوام کا سمندر حکومت لے ڈوبے گا۔ مولانا اقتدار حسین نقوی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہودی طاقتیں پوری دنیا میں امت مسلمہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، مسلمانوں کو سرے عام شہید کیا جا رہا ہے۔ یمن میں گزشتہ دنوں 100 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کو جاگنا ہوگا، اب مسلمانوں کو یکجا ہو جانا چاہیے، جو کہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک پاکستان میں یہودی طاقتیں امن خراب کرنے کے لیے دہشت گردی کروا رہی ہیں۔ لاہور، کراچی، ملتان، DI خان، کوئٹہ، بلوچستان میں بم بلاسٹنگ کرائی گئی۔ یہودی ملک پاکستان میں مذہبی جنگ کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسلمان ان کا اعلی کار نہ بنے۔ جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت نئے پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ سفید پوش طبقہ فاقہ کشی پر مجبور ہو چکا ہے۔ تیل، ادویات سمیت کھانے پینے کی اشیاء حد سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، جو کہ غریب کی پہنچ سے دور ہیں۔ غریب بھوک سے مر رہے ہیں اور خودکشیاں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان بے روزگاری، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے بہتر حکمت عملی اپنائیں، ورنہ عوام کا سمندر سڑکوں پر نکلا تو حکومت کو لے ڈوبے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وحدت المسلمین بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ چودھری محمد جمشید، نمائندہ N نیوز HD قصبہ گجرات۔
خبر شامل کرتے ہیں ایک بچے کی ویڈیو کی جو آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس بچے کا تعلق گوادر سے بتایا جا رہا ہے، جو حق دو گوادر تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان کو دیکھ کر بے ساختہ نعرے بازی کر رہا ہے۔ یہ بچہ اس چھوٹی سی عمر میں نہ کوئی کھلونے کی مانگ کر رہا ہے، نہ کوئی چاکلیٹ وغیرہ مانگ رہا ہے۔ یہ بچہ اپنے لیے 2 بوند پانی اور روشنی کی چند کرنوں کی مانگ کر رہا ہے اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی محرومیاں حکمرانوں تک پہنچا رہے ہیں۔ جامشورو میں لیاقت کالج آف نرسنگ جامشورو کے تمام طالبات ماہوار وظیفے کے حصول کے لیے نرسنگ سینٹر کے باہر ہاتھوں میں پلے کارڈز لے کر سراپا احتجاج بن گئی۔ لیاقت کالج آف نرسنگ کی طالبات کا کہنا ہے کہ ہمیں گزشتہ 7 ماہ سے منتھلی وظائف نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہیں۔ ہمیں ڈیوٹی اور کالج آنے جانے میں دشواری ہو رہی ہے، روزمرہ کے تعلیمی اخراجات کے معاملات کی وجہ سے مسلسل پریشان ہیں۔ نرسنگ کالج کی حکام کی جانب سے مسلسل معاملے پر کوئی توجہ نہ دی گئی۔ ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ ڈائریکٹر نرسنگ سندھ معاملے پر فوراً نوٹس لے کر ہمارے وظائف جاری کروائیں۔ رپورٹ حیدر علی بلوچ، این نیوز جامشورو سہبند شریف۔ خیرپور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گنبد گمز اسپتال پہنچے۔ بلاول بھٹو کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر صوبائی وزیر بھی موجود تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گنبد گمز اسپتال میں پیر عبدالقادر شاہ جیلانی انسٹی ٹیوٹ میں کئی سینٹرز کا افتتاح بھی کیا، جس میں ریپڈ رسپانس، نیوکلیئر میڈیسن، کینسر کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر، سینٹر آف ہیماٹولوجی اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ کا افتتاح کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی خیرپور گنبد آمد پر سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کیے گئے تھے۔ منچن آباد ڈی پی او محمد ظفر بزدار کا ایس ڈی پی او عبدالحنان کے ہمراہ بلدیہ ہال منچن آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ اوپن ڈور پالیسی کے تحت کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد شہریوں کی پولیس تک رسائی کو آسان بنانا اور ان کے مسائل کو فوری حل کرنا ہے۔ ڈی پی او تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار کی ہدایت اور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد ظفر بزدار نے بلدیہ ہال منچن آباد میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں ایس ڈی پی او منچن آباد عبدالحنان بھی موجود تھے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں آئے سائلین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں اور ان کے ازالہ تک متعلقہ افسران سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے۔ کھلی کچہری کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی، پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو دور کرنا ہے۔ میرے آفس کے دروازے تمام شہریوں کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں اور اوپن ڈور پالیسی کے تحت سرکل ہائی میں جا کر کھلی کچہری لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار ڈی پی او بہاول نگر نے کھلی کچہری سے خطاب کے دوران کیا۔ ڈی پی او بہاول نگر نے کھلی کچہری میں موجود تمام شہریوں کی درخواستوں کا بطور تفصیلی جائزہ لیا اور ان کی شکایات سنتے ہوئے کچھ مسائل موقع پر ہی حل کر دیے، جبکہ پیچیدہ معاملات کے حل کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دی۔ ڈی پی او نے احکامات جاری کیے کہ میرٹ پر تفتیش یقینی بنا کر جلد از جلد رپورٹ پیش کی جائے۔ ڈی پی او بہاول نگر نے کہا کہ شہریوں کے مسائل اور شکایات کے حل اور عوام الناس کو بلا رکاوٹ فوری انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کی داد رسی کے لیے فوری احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ ڈی پی او کی ہدایت پر تمام سرکل کے ایس ڈی پی اوز نے بھی اپنے اپنے سرکل ہائی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ حبیب الرحمان بلوچ، این نیوز منچن آباد۔ تھانہ بڑا گھر کے علاقہ بچیکی میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ، پولیس وارداتوں کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام۔ 2 ڈاکو مین بازار میں واقع یاسر موبائل میں داخل ہوئے اور گن پوائنٹ پر لاکھوں روپے کے موبائل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 ماسک اور دستانے پہنے ڈاکو دکان میں داخل ہوتے ہیں اور دکاندار سے اسلحہ کے زور پر موبائل فونز شاپر میں دلوا کر بآسانی فرار ہو جاتے ہیں۔ دکاندار کے مطابق ڈاکو موبائل فون شاپ سے تقریباً 6 لاکھ روپے مالیت کے فون اور 30,000 نقدی چھین لے گئے اور پولیس واردات کے 1 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچی۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت تھرپارکر کی جانب سے 1 فروری سے 14 فروری 2022 تک ضلع تھرپارکر میں گھر گھر کورونا کی وبا سے بچانے کے لیے ویکسینیشن مہم چلائی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پیر غلام حسین۔ مذکورہ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ محمود عالم خان کی رپورٹ کے مطابق ضلع تھرپارکر میں کورونا ویکسینیشن مہم 24 فروری 2021 کو شروع کی گئی تھی، جو اس وقت تک جاری ہے۔ ضلع تھرپارکر میں 12 سال سے زائد عمر کے 10,20,588 افراد کو کورونا ویکسین لگانے کا ہدف ہے۔ اس وقت 25 کورونا ویکسینیشن سینٹرز اور 88 ٹیموں کی مدد سے 81% پہلی خوراک، دوسری خوراک کا 59% اور تیسری خوراک کے تحت 28,560 افراد میں بوسٹر ڈوز لگائے گئے ہیں۔ مذکورہ ویکسین مہم کے دوران ضلع میں 4,11,88 افراد کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس کام کے لیے افسران اور
44 यूसी अफसरान की मदद से किया जाएगा, जबकि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम भी DHO ऑफिस में कायम किया गया है, जिसके फोकल पर्सन डॉक्टर सतराम दास हैं। कंट्रोल रूम का नंबर 0232920130 है। DHO थरपारकर। सिंध के सेक्रेटरी आबपाशी सुहेल अनवर कुरैशी ने कहा है कि इस वक्त सिंध को 20% पानी की कमी का सामना है, लेकिन इसके बावजूद हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि बलूचिस्तान को पानी की फराहमी में मुश्किल पेश ना आए। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने सखर बैराज के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इन्होंने मजीद कहा कि सखर बैराज और इसकी नहरों की सफाई का काम गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में इस साल बेहतर अंदाज में हुआ है। सफाई के फंड्स में हुकूमत ने कोई इजाफा नहीं किया है, लेकिन इसी फंड्स में इस बार बेहतर अंदाज में काम करके दिखाया है। उनका कहना था कि इसी सफाई के अरसे में सखर बैराज के गेटों के रंगो रोगन का काम किया जाता है और दीगर मुरम्मती काम कराया जाता है। उनका कहना था कि खीरथर केनाल समेत दीगर केनाल्स की डीसलेटिंग का काम भी जारी है। जैसे ही वो मुकम्मल होगा, सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरी पानी की अदम फराहमी की आबादगारों की शिकायत दूर हो जाएगी। पीर मुठा इत्तेहाद ग्रुप के चेयरमैन साहिबजादा पीर उस्मान साई की तहरीक लब्बैक सनावा शहर के दफ्तर में कारकुनान से मुलाकात, कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल। तफसीलात के मुताबिक पीर मुठा इत्तेहाद ग्रुप के चेयरमैन साहिबजादा पीर उस्मान साई की सनावा दफ्तर आमद। अमीर PP 258 कारी मोहम्मद ताहिर सईदी, नाजिम आला मेहर ताहिर अब्बास सहारन, नाइब नाजिम आला मुफ्ती उस्मान अख्तर कादरी और बाकी दोस्तों के हमरा मुलाकात और कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद शाहिद भट्टा, नुमाइंदा N न्यूज़ सनावा। कस्बा सिनामा में म्यूनसिपल इंतजामिया की लापरवाही की वजह से सफाई का निज़ाम दरअमबरम हो चुका है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगने की वजह से अवाम शदीद परेशानी से दो चार हैं और इलाका मकीनों का जीना दोभर हो चुका है। गलियों महलों में डंपिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं, खास तौर पर बुखी चौक के पास, कब्रिस्तान के नज़दीक और मदरसा इब्न अबी तालिब के पास बनाए गए कूड़ा करकट के डंपिंग पॉइंट्स की बदबू और ताफुन की वजह से अवाम शदीद परेशान हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे शहर में इतनी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, हर जगह बदबू है, इकट्ठे हुए हैं, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, ना ही कोई म्यूनसिपल वाले तवज्जो दे रहे हैं। इसकी वजह से बदबू फैली हुई है, बदबू से लोग बीमार हो रहे हैं, सांस की बीमारी है, गले की बीमारी है। वैसे भी सर्दियों का मौसम है। हमारे आला हुकाम से ये इल्तिजा है, ये दरख्वास्त है कि वो इसको ढेर को सफाई को यकीनी बनाए और ये गंदगी यहाँ से हटा दें। शहर भर में सारा कूड़ा करकट फैला हुआ है गलियों में। शहर की इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि इस शहर कूड़ा करकट को शहर से दूर मुंतकिल किया जाए। लाखों रुपयों की मद में लिए गए गंदगी उठाने वाले लोडर रक्शे दफ्तर की जीनत बना दिए गए। घरों के साथ लगे गंदगी के ढेर इलाका मकीनों का मुंह चिढ़ा रहे हैं। शहरियों ने कई बार म्यूनसिपल इंतजामिया को आगाह किया, मगर कोई सुनवाई न हो सकी है। अवाम का कहना है कि अगर इन डंपिंग पॉइंट्स को और कूड़ा करकट को शहर से बाहर मुंतकिल न किया गया तो कमेटी के दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। मोहम्मद शाहिद भुट्टा, N न्यूज़, कस्बा सनावा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मुल्तान डिवीज़न में सिक्योरिटी इंतजाम चेकिंग का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न डॉक्टर इरशाद अहमद, RPO मुल्तान रीजन जवेद अकबर रियाज ने गैर मुल्की मशहूरों की सिक्योरिटी चेकिंग के लिए दौरा किया, जबकि DC मुल्तान आमिर करीम खान और CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर बात करते हुए कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि डिवीज़न भर में अमन और अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श है। महकमा माहौलियात, महकमा इंडस्ट्रीज़ को आला चेकिंग के अहकाम दिए गए हैं। गैर मुल्की हमारे मेहमान हैं, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इंडस्ट्रियल यूनिट्स की आलात की जांच, फिटनेस और सिक्योरिटी की जांच करवाई जाएगी। गैर तसल्ली बख्श सिक्योरिटी आलात फिटनेस पर नोटिस देकर फैक्ट्री को सरमवर किया जाएगा। RPO मुल्तान रीजन जवेद अकबर रियाज ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे किसी भी सूरत से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हसास मकामात और गैर मुल्कियों के दफातर पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने कहा कि इंतजामिया और पुलिस मुश्तरका लॉ एंड ऑर्डर प्लान पर अमल पैरा है। इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम फैक्ट्रियों की चेकिंग की जा रही है। CPO मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर ने कहा कि गैर मुल्कियों और हसास तनसीबात पर सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। बाज़ निजी फैक्ट्री में हलाक गैर मुल्की बशिंदे के लवाकिन से कमिश्नर, RPO, DC और CPO मुल्तान ने मुलाकात की और नाखुशगवार वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि ज़ेर इलाज गैर मुल्की बशिंदे की मुकम्मल निगहदाश्त की जा रही है, जबकि गैर मुल्की बशिंदों ने तमाम प्रोसेस पर इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन कामरान मुजफ्फर के साथ शेख अरशद अली, N न्यूज़।
अब रुक करते हैं शुजाबाद से। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी की पीपल्स पार्टी जिला मुल्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद हुसैन शाहीन मियां के छोटे भाई गुलाम हुसैन की वफात पर इजहार ताज़ियत, मरहूम की मगफिरत फातिहा ख्वानी की। उनके हमरा मखदूम सैयद अब्बुल हस गिलानी सजादा नशीन दरबार मूसा पाक शहीद और सैयद अहमद मुश्तबा गिलानी साबिक MPA थे। मखदूम अब्बुल हस गिलानी ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने मरहूम के भाइयों खादिम हुसैन कादरी, फिदा हुसैन, मरहूम के बेटों हाफिज अतीकुल रहमान, अनीसुल रहमान से इजहार हमदर्दी किया। इस मौके पर नईम खान, जैगम गिलानी, मियां अयाज बोदला, राना सफदर नून, ख्वाजा अनीस, सदर अंजुमन ताजरान हाफिज अकरम मियूं, मलिक अजहर, रजाक मलाना, आसिम शाहीन, नोमान अब्दुल्ला, चौधरी बशीर अहमद मियूं और मौजूदीन इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। तुर्बत के इलाके में दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले शुजाबाद के रिहायशी नवेद गफूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा में अस्करी 107 विंग के ब्रिगेडियर परवेज नसीम और कर्नल रहमानी समेत इलाकाई उमाइदीन, मोतबरीन, मोअज़्ज़िज़ीन व दीगर शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद के जसद खाकी को उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया और अस्करी 107 विंग के ब्रिगेडियर परवेज नसीम, कर्नल रहमानी और पाक फौज के जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी दी। शहीद के पसमानदगान में बीवी, एक बेटा और एक बेटी शामिल हैं। शहीद एहलकार नवेद गफूर को गुज़िश्ता रात तुर्बत से शुजाबाद लाया गया था, जिनकी नमाज जनाजा आज अदा की गई। शहीद एहलकार नवेद गफूर के वालिद का कहना था कि दहशतगर्द हमारे हौसले पुस्त नहीं कर सकते। मेरे 4 बेटे हैं, धरती माँ पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। हमारे नुमाइंदे चौधरी आस मोहम्मद से बुजुर्ग सियासतदान साबका MNA अलहाज राना मोहम्मद शौकत हयात खान नून की इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की तकरीब शुजाबाद हयात खान वाले पर की गई, जिसमें साबका वजीर आजम व अपोजिशन लीडर सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, MNA आमिर डोगर तशरीफ लाए। इसके अलावा तमाम सियासी समाजी शख्सियात, अंजुमन ताजरान, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी और हज़ारों की तादाद लोगों ने शिरकत की, जिसमें अलहाज राना शौकत हयात खान नून की मगफिरत के लिए दुआ मंगवाई गई। आखिर में लंगर तकसीम किया गया। गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन जिला सोहबतपुर की मुंतखब काबीना ने हल्फ उठा लिया। साबिक सूबाई वजीर मीर सलीम अहमद खान खोसा ने हल्फ लिया। सोहबतपुर में गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन की काबीना की हल्फ बर्दारी के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खास साबिक सूबाई वजीर व रुकन सूबाई असम्बली मीर सलीम अहमद खान खोसा थे। तकरीब के एजाजी मेहमान गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के सूबाई सदर हबीबुल रहमान मर्दानजई थे। तकरीब के मेहमान खास साबिक सूबाई वजीर मीर सलीम अहमद खान खोसा ने गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन जिला सोहबतपुर की मुंतखब काबीना के अहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए साबिक सूबाई वजीर मीर सलीम अहमद खान खोसा ने कहा कि गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन जिला सोहबतपुर के मुंतखब अहदेदारान को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुंतखब काबीना के अहदेदारान तालीम की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि सोहबतपुर में तालीम का मायार अच्छा है और इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए असातिज़ा अपना किरदार अदा करें। इसके अलावा सूबाई सदर हबीबुल रहमान मर्दानजई, चेयरमैन शानरिंद, सीनियर नायब सदर हाजी अब्दुल वाहिद खोसा, ज़िलाई सदर दाद मोहम्मद मरी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद ज़हरी और दीगर ज़िलाई अहदेदारान ने भी खिताब किया। सरदार बंगलजई, N न्यूज़ सोहबतपुर। कराची में MQM पाकिस्तान के पुरअमन एहतजाज करने वाले कारकुनान, माओं, बहनों, बच्चों और हक परस्त अराकीन असम्बली पर लाठी चार्ज। MQM के कारकुन असलम शहीद और टंडवल्ला यार में खलीलुर रहमान शहीद के बहिमाना कत्ल के खिलाफ MQM पाकिस्तान टंडवल्ला यार डिस्ट्रिक्ट के ज़ेर एहतमाम किला चौक से टंडवल्ला यार प्रेस क्लब तक पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने हाथों में एहतजाजी बैनर्स और सियाह झंडे उठा रखे थे और फलक शगाफ नारे लगाए। एहतजाजी रैली में सिंध तंजीमी कमेटी के अराकीन खुशी मोहम्मद मुगल, मोहम्मद अली शाह, हक नवाज कायम खानी भी मौजूद थे। शुरका से खिताब करते हुए हक नवाज कायम खानी, रईस अहमद खानजादा, मोहम्मद आजम खान कायम खानी ने खिताब करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं तैमूर रजा कायम खानी की इस रिपोर्ट में। पुरअमन एहतजाज की वजह से जिसमें बेगुनाह हमारी माएँ, बहनें, बच्चे जख्मी हुए जो आज भी हॉस्पिटल के अंदर हैं। भोलू भाई को बेदर्दी से अदालत अहाता के अंदर कत्ल कर दिया गया और पुरसकून तरीके से जो उसके साथी थे फरार हो गए और पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया और उसकी भी वीडियोस, उसकी भी मूवीज़, उसकी भी फ़ोटोज़ आप लोगों के सामने हैं। जिस तरीके से वालियाना अंदाज में उसको वहाँ पर अस्पताल में वेलकम किया गया, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। जैसा कि जो लोग इसकी पश्तपनाही में हम चाहेंगे कि जुडिशल इंक्वायरी की जाए कि इसके अंदर कौन लोग मुलविस हैं। जिस साथी की शहादत हुई
उसके ऊपर, उसकी बहनों के ऊपर, उसके भाइयों के ऊपर, उसकी बीवी के ऊपर, उसकी रिश्तेदारों के ऊपर यकीन जानिएगा इतना जुल्माना सितम किया गया जैसे कल कराची के अंदर पेश किया गया। आज इस रैली का मकसद मैं आपको बता देना चाहता हूं, MKM पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है जो काला कानून के खिलाफ, जो बल्दियाती काला कानून किया गया है उसके खिलाफ ये एहतजाज करने निकली है, और भोलू भाई और असलम भाई के लिए भी एहतजाज करने निकली है। हम उस एहतजाज में जो हमारी माओ बहनों पर जिस तरह तशद्दुद हुआ और हमारा एक साथी शहीद हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम आला इख्तियार से मुतालबा करते हैं, चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि उन जिन्होंने ये अमल किया उनको गिरफ्तार किया जाए और कानून सजा दी जाए। टंडोला यार में जुम्मा मुबारक का दिन नमाजी परेशान। बल्दिया मुलाजमीन टंडोला यार अपने मुतालबात के लिए काम छोड़ हड़ताल पर बैठ तो जाते हैं मगर उन्हें अपने काम की कोई परवाह नहीं, जिस चीज़ की वो तनख्वाहें लेते हैं। ये तस्वीर कुम्हार पाड़े की है जहां नालियों का गंदा पानी गलियों में रक्स कर रहा है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का कहना है कि PSL के खिलाफ अगर कोई साजिश हुई है तो वो वजीर आला हाउस में मकीन आसिफ अली जरदारी के मुंशी ने की है। PSL के खिलाफ अगर कोई साजिश हुई है तो वो इस वजीर आला हाउस में मकीन जरदारी के मुंशी ने की। PSL में कोई रुकावट डालने की कोशिश की गई है, सिंध के वजीर दाखिला जो कि वजीर आला हाउस का मकीन है, जो कि मुंशी है जरदारी खानदान का, उसने की। हलीम आदिल शेख का कहना है कि कल जिस अंदाज में असम्बली के मोअज़्ज़िज़ रुकन को और जिस तरह खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से उस वाक़े का नोटिस लेने पर हम उनको वेलकम करते हैं। कल जिस अंदाज से इस असम्बली, इस मोअज़्ज़िज़ रुकन के एक पार्लियामेंटेरियन को घसीटा गया, जिस अंदाज से खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया गया, आज वज़ीर आज़म साहब के नोटिस को हम वेलकम करते हैं। जबकि हलीम आदिल शेख का मजीद कहना था कि पुलिस के अफसर सियासी गुलाम में गुज़िश्ता रोज होने वाले वाक़े के बाद IG सिंध को खुद चार्ज छोड़ देना चाहिए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, N न्यूज़ कराची। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज होने वाली हंगामा आराई की वजह से PSL की टीम्स ने वहां से निकलकर नेशनल स्टेडियम जाना था, उनका कानवाय वहां से नहीं गुजर सका, जिसकी वजह से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस भी कैंसिल करना पड़ी। कल इस हंगामा आराई की वजह से PSL की टीम्स ने जो नेशनल स्टेडियम की तरफ जाना था, होटल से निकलकर उनका कॉन्वॉय वहां से नहीं जा सका। जबकि सईद गनी का कहना था कि जो रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है उससे ये जाहिर होता है कि गुज़िश्ता रोज MKM के कारकुन की हलाकत तशद्दुद से नहीं बल्कि हार्ट अटैक की वजह से हुई। उन्हें पहले कराची हार्ट डिजीज ले जाया गया, उसके बाद NICVD मुंतकिल किया गया। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने हैं उससे ये जाहिर होता है कि वो तशद्दुद से नहीं बल्कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हुई है और उनको लेकर जाया गया था कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ और वहाँ से फिर उनको जो है वो यहाँ लेकर आए। जबकि वज़ीर इत्तलात व मेहनत सईद गनी का मजीद कहना था कि सियासी जमातों के एहतजाज के हक में है, लेकिन कल जो हुआ वो एक सोचा समझा मंसूबा था जिससे PSL की टीमों जिनमें इंटरनेशनल खिलाड़ी भी थे उन पर मुनफी असरात मुरतब हों। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, N न्यूज़ कराची। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुगारी। इस वक्त सांगड़ समेत सिंध के अंदर आटे की क्या सूरत है इस वक्त, यहाँ पर अगर जो स्टॉल लगाया गया वहाँ पे आटे का तो शदीद बुरहान नजर आता है ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे कनकी की अगर सूरत को देख लिया जाए तो सांगड़ के अंदर जो कनकी है वो कुछ ही दिनों के बाद उसकी जो है वो कटाई शुरू हो जाएगी। इस वक्त फ्लोर मिलों के अंदर और सरकारी गोदामों के अंदर क्या सूरत है इस वक्त, मैं एक फ्लोर मिल पे मौजूद हूँ। उस फ्लोर मिल के अंदर किस तरह से काम चल रहा है वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस जो मिल के अंदर जो उसको पहले मैं आपको गोदाम की सूरत दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रक भी खड़े हैं, उससे भी पूछते हैं कि यहाँ कहाँ माल लेके जाएंगे, कहाँ से हैं। सर जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद। कहाँ से हैं आप? कराची से। यहाँ पे जो आटा लेने आए आप? नहीं, माल भरने आए। हाँ, आटा ले जाओगे? हाँ, मतलब सांगड़ से आप आटा ले जाओगे? जी। कितना लेके जा रहे हो? 30 टन। 30 टन। कितने इससे पहले कितने दफा लेके जा चुके हैं? ये दूसरी दफा है। दूसरी दफा। मतलब कराची में डिमांड ज्यादा है? हाँ, सही है। सही डिमांड है। कितना किराया ले जाते हो आप? पिछला चक्कर 33 में गए, ये अभी 38 है। ये दो जगह का वो व्यापारी लेके जाते हैं या ये मिल्क मालकान भेजते हैं आपको? अड्डे वाले से थ्रू आते हैं। अड्डे वाले के थ्रू आते हैं कि यहाँ से जो है आप आटा लेके जाते हो। मतलब कराची के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा डिमांड है। आप देख रहे हैं कि कराची के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा, यहाँ से जो है कनकी जो आटा जो है वो कराची शिफ्ट हो रहा है
और इस वक्त गोदाम के अगर सूरत हाल हमको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर गोदामों की क्या सूरत हाल है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो कनकी जो सरकारी सतह पे जो है वो फ्लोर मिल मालकान को दी जा रही है। फ्लोर मिल मालकान जो है वो यहाँ पर इसको ग्राइंड करते हैं। आटा जो है इस वक्त सांगड़ समेत जो है वो सिंध के अंदर खासकर कराची के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा जो डिमांड है। और इस वक्त ये गोदाम आप देख सकते हैं कि सरकारी जो कनकी जो इनको ज़ाहिर इनके अपने खरीदी हुई कनकी तो नहीं है, यहाँ पर वो सरकारी गंदम है। और आप देख सकते हैं कि वफर मकदार में यहाँ पर इनके पास गंदम भी मौजूद है। एक और हम इसके अलावा मिल के अंदर क्या सूरत है वो भी आपको दिखाएंगे। जोकर जो बनता है वो भी यहाँ पे सेल होता है। एक और ट्रक यहाँ पे लोड हो रहा है जोकर के हवाले से, हम उससे भी बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जोकर लिया जाता है, क्या क्या यहाँ से चीज़ें मिल की तरफ से जहाँ पे जा रही हैं वो चीज़ों को भी हम अपडेट करते रहेंगे। और इस वक्त ट्रक के अंदर जो है लोड हो रही है जोकर जो है वो लोड हो रहा है। आटे की क्या सूरत है, किस तरह से मिल के अंदर आटा बनता है, ये तमाम चीज़ें हम आपको अपडेट करते जाएंगे। आटे का बहरान सिर्फ मसनूई नज़र आ रहा है, लेकिन जो इसके हकदार हैं उनको आटा नहीं मिल रहा। जो दूसरे लोग हैं वो उधर से सेल पॉइंट से मतलब सरकारी रेट में ख़रीद करके दुकानों वालों को बेच रहे हैं प्राइवेट रेट के साथ। इस वजह से आटे का बहरान पैदा हुआ है। ये अगर ख़त्म हो जाए, इंतज़ामिया को चाहिए कि ये ख़त्म करें, तो फिर ये आटे का बहरान भी ख़त्म हो जाएगा। आप कितनी सप्लाई कर रहे हैं? हम डेली के तकरीबन 8 से 10 रक्शे 100 कट्टे के भेज रहे हैं और हर 1 घंटे के बाद हमारा रक्षा 4-5 सेल पॉइंटों पे जा रहा है। जल्दी खत्म हो जाए। वो जल्दी तकरीबन 20-25 मिनट में रक्षा ख़त्म हो जा रहा है। क्या समझते हैं बोकस हो रहा है? जी जी, ये सब कुछ बोकस हो रहा है। यहाँ पे मैं तो अकाउंटेंट का काम करता हूँ। आपका कार्ड बन गया है? जी जी। शनाख्ती कार्ड? जी जी। कितनी एज है आपकी? मेरी 18.5 साल है। 18 साल है? जी जी, मेरा DIT का कोर्स भी हुआ है। अच्छा, क्या सूरत है यहाँ के आपकी फ्लोर मिल की? कैसे? कितनी कन की बोरी मिल रही है आपको? सर ये सेठों का पता था। सीजन की तरह इस सीजन में भी 4 लाख एकड़ पर यहाँ पर गंदम की बुआई की गई। बेहतर मौसम ज़रूरी पानी की फराहमी के बाद तवक्का की जा रही है कि इस साल भी 9 करोड़ से ज्यादा गंदम की बोरियां जो है उसकी पैदावार होगी। लेकिन सिंध सरकार की जानिब से बर वक्त यहाँ पर खरीदारी का जो स्कीम न बनाने की बिना पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि सांगड़ के अंदर आटे का बुरहान जो है शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। अगर सिंध सरकार की जानिब से अगर बर वक्त यहाँ पर खरीदारी ना की गई तो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों के अंदर सिंध के समेत सांगड़ में भी आटे का शदीद बुरहान होगा, जिससे सांगड़ के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ इशफाक सूरज, सांगड़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील सवात GT रोड पर और आज मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिनको आज सरेआम एक मस्जिद में लूट लिया गया। आइए उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सोहेल है। तो ये वाक़या कैसे पेश आया? जी, ये मैं नमाज अदा करके निकल रहा था, बल्कि नहीं अदा वज़ू करने के लिए जा रहा था। तो जैसे मैं मस्जिद के अंदर गया तो एक बंदा बिल्कुल मेरे साथ जा रहा था। तो जैसे मैं वज़ू करने लगा उस बंदे ने भी मेरे साथ वज़ू शुरू किया। तो जैकेट मैंने लटकाई अपनी दीवार के साथ, तो बंदा भी उसकी भी वेस्टकोट उसने अपनी साथ लटकाई और बस उसने वज़ू नहीं किया। फिर वो खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद उसने अपनी वेस्टकोट को हाथ मारा। मैं समझा वो अपनी कोई चीज़ें तलाश कर रहा है, लेकिन उसने इस दौरान मेरी जैकेट से मेरे पैसे निकाल लिए थे। और जब मुझे शक हुआ तो मैंने देखा मेरी जैकेट की जिप खुली हुई थी। तो मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो काफ़ी स्पीड के साथ बाहर निकल गया। और बाहर जब मैं निकला तो उसके पास गाड़ी थी और गाड़ी को मैंने हिट वगैरह किया, लेकिन गाड़ी स्पीड के साथ वो भाग गया। गाड़ी में बैठ के वो बंदे थे 3, तो मैंने देखे बंदे भी, लेकिन वो भाग गए। तकरीबन कितनी कैश थी आपके उस पॉकेट में? जी, ये मैक्सिमम तकरीबन 20,000 रुपये थी। तो गाड़ी का कोई नंबर वगैरह आपसे चेक हुआ? जी जी, गाड़ी का नंबर चलती गाड़ी का नंबर नोट किया है। उसका नंबर है 438 नंबर है। और दूसरा लड़का है उसने भी इंग्लिश में साथ जो जी वो नहीं पता। वो गाड़ी भगा के उसमें हमने पीछे से देखा है 438 नजर आया। और कौन से मॉडल की गाड़ी थी? जी VXR आल्टो। तो आप पुलिस के पास गए तो उन्होंने फिर क्या कहा आपको? जी उन्होंने गाड़ी ट्रेस की है, तो उसका नंबर था 427 जो उन्होंने ट्रेस किया, लेकिन उसमें फैमिली बैठी हुई थी तो वो गाड़ी नहीं थी, वो अभी तक गाड़ी ट्रेस नहीं हो सकी। तो FIR आपकी दर्ज होगी थाने में? जी नहीं, FIR दर्ज कराने गया था, लेकिन वहाँ पे मौजूद नहीं थे ऑफिसर वगैरह, तो वो कह रहे थे थोड़ी देर के बाद आप आए तो आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। लेकिन ऑफिसर का तो काम ही नहीं है कि वो आपको कहे कि ये तो वहाँ पे मर्डर है, जो फ्रंट डेस्क है उनको ये आपकी FIR दर्ज करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, मैं गया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा आप थोड़ी देर बाद चक्कर लगा लें, आपकी FIR हो जाएगी। जैसे कि नाजरीन आपने सुना कि यहाँ पे पुलिस की ये हालत है। जब ये वहाँ पे पुलिस स्टेशन गए अपनी कंप्लेंट लेके, तो उन्होंने साहब बहादुर का बहाना बनाकर इनकी कंप्लेंट ही लॉन्च नहीं की
और ये बेचारे अपनी रकम से महरूम हो चुके हैं। पेट्रोलियम पुलिस जो कि यहाँ पे बहुत बड़े दावे करती है, उसने भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे इनके पैसों की कोई वापसी की सूरत बने। वहीद मलिक, एन न्यूज़, सोहावा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 30 जनवरी को फुआरा चौक पर मार्का होगा। हमने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। 2001 का बल्दियाती निजाम वापस मांग रहे हैं। नासिर हुसैन शाह की क़यादत में वफ्द आया था। सिंध हुकूमत हमारे 70% मुतालबात मानने पर तैयार थी, बाकी 30% के लिए कमेटी बनाने का कहा गया। पाक सरजमीन पार्टी मैं किसी से कंपेयर तो नहीं कर रहा, दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला, और एक आखिरी मार्का होगा, वो डिसाइसिव मोमेंट होगा, एक आखिरी मार्का होगा। इस दौरान जब हमारी तैयारियां उरूज पे चल रही थी और चल रही हैं और हैं आज भी, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से, हुक्मरान जमात की तरफ से हमें कांटेक्ट हुआ और हमें कहा गया कि हम मिलना चाहते हैं। तो बात करने से तो पाक सरजमीन पार्टी ने किसी से के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए। हमने उनको कहा मोस्ट वेलकम, आइए। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से नासिर हुसैन शाह साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए। हमने भी एक छोटी सी टीम बनाई, मैं उसको हेड कर रहा था। अनीस कायम खानी साहब उसमें थे और हमारे 5 और सीनियर रहनुमा थे और हम उनके साथ बैठे। तो उन्होंने हमारी गुफ्तगू तो वो सुनते चले आ रहे थे कि हम क्या मांग रहे हैं। तो जो बातें हम उनसे मांग रहे थे और जो बातें हम क्या मांग रहे हैं, हम 2001 का बल्दियाती निज़ाम वापस मांग रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था इस बल्दियाती कानून के साथ जिंदा रहना मुमकिन नहीं। काले कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले लिसानी फसादात चाहते हैं ताकि असल मुतालबात पीछे रह जाएं। हमने पहले दिन से ये बात कही कि ये पीपल्स पार्टी का ये बल्दियाती निज़ाम का कानून जो कि जमहूरियत के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, इसके साथ जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। सियासत तो दूर की बात है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था 18वीं तरमीम के बाद सूबों में करप्शन बढ़ गई। अगर 18वीं तरमीम अवाम को फायदा नहीं पहुंचा रही तो इसे खत्म होना चाहिए। अगर ये 18वीं तरमीम नीचे ट्रिकल डाउन, इसके फ्रूट नीचे नहीं मिल रहे, अगर ये नीचे नहीं, इसके असरात नहीं आ रहे, 18वीं तरमीम में इख्तियारात वसाइल वजीर आला के पास अगर पार्क होगा, अगर ये डिस्ट्रिक्ट में, सूबे के डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, तहसील में, शहरों में, यूनियन काउंसिल में अगर ये ट्रांसफर नहीं हो रहे तो फिर ऐसी 18वीं तरमीम को खत्म हो जाना चाहिए। जबकि सरबराह पीएसपी का मजीद कहना था कि हमारी रैली से पीएसएल पर आंच नहीं आएगी, हम टीमों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। पीएसएल की टीम का हमें बहुत ख्याल है, हम उसकी सारी अरेंजमेंट करेंगे। मेरे बच्चों के पानी से ज्यादा पीएसएल का मैच इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर 1, ठीक है। लेकिन हम फिर भी, हमारे मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा है, पाक सरजमीन पार्टी बिल्कुल उसके ऊपर खराज भी नहीं आने देगी, उस ना खिलाड़ियों की आमदरफ्त पे और ना पीएसएल के ऊपर कोई आंच भी नहीं आएगी। इसका हमें पता है इसको करना क्या है। हम ऑर्गेनाइज जमात है, हमें पता है इसको करना क्या है। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, एन न्यूज़, कराची। जमाते इस्लामी कराची की जानिब से सिंध असेंबली के सामने होने वाले एहतजाजी धरने को खत्म कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने जमाते इस्लामी के धरने में पहुंचकर रहनुमाओं से मुज़ाकरात किए। कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में जमाते इस्लामी की जानिब से एहतजाजी धरना 30 रोज बाद खत्म कर दिया गया। एक तो अब जब सारी चीजें मनवा ली गई हैं तो अब धरने को खत्म करें। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नहीमुर रहमान का कहना था कि जमाते इस्लामी का नुक्ता नजर पार्टी नहीं बल्कि कराची के 3.5 करोड़ आवाम थे। 2021 के कानून में तरमीम पर सिंध हुकूमत तैयार हो गई है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि 2013 में जो महकमे लिए गए थे वो महकमे भी अब मेयर के महातेत होंगे। तलबा यूनियन के इंतखाबात के ऊपर इत्तेफाक भी हुआ और इन्होंने इसका ऐलान भी किया है और उसको अब वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अपने प्रोसेस मुकम्मल कर रहे हैं। ये जिसको कंफ्यूज कर दिया गया था माजी में और ये तासुर देने की कोशिश की जो तलबा लड़ते बहुत लिहाजा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, उसका नुकसान ये हुआ कि वडेराइज्म और जागीरदारी बढ़ी। पॉलिटिकल वर्कर, सोचने समझने वाले लोग, डिबेट की सलाहियत रखने वाले, तालीम में बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले, ऐसे लोगों के रास्ते बंद हो गए पार्टियों के अंदर। तो
तो जब ये यूनियन के इंतखाबात होंगे तो तालीमी इदारों का माहौल भी बेहतर होगा, वहां पर भी अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज बढ़ेंगी और इससे पॉलिटिकल पार्टीज को भी जबरदस्त किस्म का स्टफ मिलेगा। और विफाक ने बड़ी बड़ी बातें की थी और अब से 15 दिन पहले इन्होंने एक शबखून मारा। ज़ाहिर विफाक का मतलब पीटीआई है और एमक्यू में, और इन्होंने कराची पे शबखून मारा कि 650 मिलियन गैलन के प्रोजेक्ट को 260 मिलियन गैलन कर दिया, एक तिहाई कर दिया, और कहा कि बाद में फिर ये बढ़ाते रहेंगे। और विफाक हमें जो हमारा कोटा है पानी का, कराची के लिए पीने के पानी का कोटा, वो 1% ऑफ इंडस्ट्री पर है। वो हुकूमत है, उनकी काबीना है, उनके मिनिस्टर्स हैं और उनके वजीर आजम कर दिया। हमने सूबाई हुकूमत को इस मुआहदे में अलग से इसको मेंशन किया है कि सूबाई है तो सिंध हुकूमत अपने कोटे से वो पानी फराहम करे ताकि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सके। उनका कहना यह है कि जब वो 650 का डिजाइन ही नहीं कर रहे तो पानी विफाक हल करे, वरना सुबह जो है इसको ले। तो इस पर हमारी तफसीली तबादला ख्याल हुआ और सूबाई हुकूमत ने ये वादा किया है कि हम इसके लिए अपना सरोसो इस्तेमाल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि मुआहिदे की पासदारी करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम लाशों की सियासत नहीं बल्कि संजीदा जद्दोजहद कर रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ मेहताब हुसैन, एन न्यूज़, कराची।